Good evening and welcome everyone to this session on Indian economy in which we are going to resume our discussion on fiscal policy. So yesterday we saw the types of taxes, direct taxes, indirect taxes, and under the indirect and direct taxes we saw what is the meaning of excise duty, what is the meaning of customs duty is what we are going to see today, what is the meaning of the corporate tax and what is the meaning of minimum alternate tax. We spent pretty much amount of our time on these taxes yesterday. Now today we are going to understand one important tax called GST. GST is something which will be covered today and a bit of it in the next class, right? So we are going to carry forward the discussion on the other topics as well. Let's get started. तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे, आप देखोगे पब्लिक डेट, पब्लिक फाइनेंस, ये सब चीज़ें चल रही हैं. जस्ट 1 मिनट गाइस. जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम यहाँ पे हैं अभी, हमें कवर करनी है ये सारे कुछ. पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, ये हमने कवर कर लिया है. सर्विस टैक्स क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा. केलकर टास्क फोर्स. उससे पहले ये समझना ज़रूरी है टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है, टैक्स शिफ्टिंग क्या होता है, एंड इफेक्ट्स ऑफ टैक्स क्या है, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, राइट. ये सब चीज़ों को समझेंगे. उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जो इसमें ऐड करे जाएंगे. करंट ट्रेंड्स जैसे कि टैक्स रिसीट्स, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इनका, वो सब चीजें. नाउ कमिंग हियर, तो एनीबडी एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान टैक्सेस, then revenue budget and capital budget. This is the distinction I told you that you have to read this yourself. All right, so this is there. Capital receipts are the receipts which either create a liability or cause a reduction in the assets of the government. These receipts are non-recurring. A receipt is a capital receipt if it satisfies any of the two conditions. Did you guys read this? इसको रीड किया है कि नहीं बताओ फटाफट. Anybody, any doubts in the topics that we've already covered? Please ask. Okay, all these slides is not possible either. Now borrowings क्या है, borrowings अब समझ में आ गया. What is the budget in nutshell? What is fiscal deficit in nutshell? Is this clear to everyone? So this is the difference in meaning. Revenue receipts and capital receipts. What is the difference in the meaning of the two? So capital receipts impacts asset liability status of the government. Assets are lowered or liabilities are raised. ये सारा कुछ है revenue and capital का difference and all. Alright. Non-debt capital receipts क्या होती हैं, जिनसे कर्जा नहीं लेना पड़ता. Government need not borrow money from anyone while going for non-debt capital receipts. Alright. Non-debt capital receipts के लिए गवर्नमेंट को कोई कर्जा नहीं लेना पड़ता. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज एन इनोवेटिव वे. दीज डेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए गवर्नमेंट इनकी लिस्टिंग करवाती है शेयर्स की, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं. तो ये चीजें हम समझेंगे कैपिटल मार्केट में. हाउ द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द कैपिटल, ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी. तो आगे चलते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसीट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. टोटल रिसीट डेटा, यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स एंड CGA, ये सारा कुछ इसमें रहता है. सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन क्या है, पैरामीटर्स क्या है. 2014-15 में
Revenue receipts, right? Figures are in percentage. Revenue receipts were 11%. Gross tax revenue 12.4%. Non-tax revenue से जो borrowing करी गई या disinvestment से जो पैसा आया 9%. राइट, तो कुछ इस तरह से गवर्नमेंट के बजट में जो इनको प्रेजेंट किया जाता है. राइट, ये 2019-20 का है, तो ये बजट एस्टिमेट्स हैं. बजट जो ये हमने लिया है स्क्रीनशॉट, ये 2019-20 का है. तो आप यहां पे देखोगे ये BE दिया हुआ है, बजट एस्टिमेट. राइट, so this is there. Now capital expenditure, loan disbursals by the government. Loans forwarded by the central government might be internal or they might be external, given to foreign countries like Nepal. Foreign के banks को कुछ लोन दिए गए, वो सारी चीजें. They don't have to pay taxes. Ishfaq, as of now I am just answering this. As of now, no. Okay. All right. Those of you who face problem in watching the session, please try first place incognito mode on Google. Try logging in again or try a different browser. Try checking if your browser has been updated or not. Google Chrome updated है या नहीं, ये भी check कर लेना. Capital expenditure on defense by the government. This consists of all the capital expenses. To maintain the defense forces, the equipment purchased for them, as well as the modernization expenditures. The defense is a non-plan expenditure which has capital as well as revenue expenditure in its maintenance. The revenue part of the expenditure in the defense is counted in the revenue expenditures by the government. The revenue part of expenditure in the defense is revenue part of expenditure in the defense is counted in the revenue expenditures by the government. तो सिंपल सी लाइंस हैं, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें. एंड इसके अलावा अगर हम देखें और कोई चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जनरल रीडिंग का है. जब मैंने चीज़ें समझा दी हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है इसमें. राइट, ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर, कैसे पैसा खर्च कर रही है सरकार, इसी के मीडियम से मैं कुछ और चीज़ें भी समझाता हुआ चलूँगा. Composition of government expenditure reveals that expenditure on defense, salaries, pensions, interest payments and subsidies accounts for more than expenditure on these heads. इनको क्या बोला जाता है? Heads बोला जाता है. Central sector schemes. What are central sector schemes? What are central sector schemes? Central sector schemes are those schemes which are launched by the government. Central sector schemes are those schemes which are launched by the central government on the subjects given in the central sector schemes are the schemes which are launched by the government on the subjects given in the union list or concurrent list. ठीक है, subjects given in the union list or concurrent list and are 100% funded by the central government. Clear? And are 100% funded by the central government, right?
डन। अब ये देखो यहाँ पे किस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, ये ट्रेंड है इसका। कॉर्पोरेशन टैक्स से अब शेयर ऑफ द पाई, अगर ये 1 रुपया है या 100 रुपीज है तो इसमें से 18% मनी इज कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। दिस इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज द चार्ट डिपिक्टिंग द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। 18% इज द टैक्स बीइंग पेड बाय कंपनीज। इनकम टैक्स 17%। तो कभी कभी ये सीक्वेंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे पैसा आ रहा है और कैसे पैसा जा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? सो दीज थिंग्स आर देयर नाउ। और उसके बाद 4% कस्टम्स, 4% मनी इज कमिंग फ्रॉम कस्टम्स टैक्स। देन 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18%। नॉन टैक्स रेवेन्यू 100%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 100%। नेट डेट कैपिटल रिसीट्स 6%, टोटल डेट कैपिटल रिसीट्स 6%। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 20%, बोरो करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को 20% पैसा। नेट डेट कैपिटल रिसीट्स, डेट कैपिटल मतलब कर्जे के रूप में जो डेट कैपिटल आया, ठीक है। हो सकता है ये कर्जा नया लिया हो, ये तो बोरोइंग में आ गया, लेकिन वो वाला पैसा है। दिस इज द मनी बीइंग रिटर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द अदर कंट्रीज टू whom the government would have lent the money. Clear? So this is the basic meaning of it. Now all these things are there. अब आगे चलें अगर तो is this point clear to you? Interest payment, central sector schemes, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 13%, इस पैसे का 13% गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे खर्च कर रही है। और लेगेसी बर्डन जो है इंटरेस्ट पेमेंट 18% जो आज हम पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड पब्लिक डेट, सरकारी कर्जा, पब्लिक डेट इतना है कि हमारा आज का हर साल का इकट्ठा किया गया रुपए में से 18% इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। डिफेंस 8%, सब्सिडीज 6%, फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 10%, फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, यानी कि फिनेंस कमीशन, यूनियन फिनेंस कमीशन जो कि 14th फिनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशंस पे हमें 10% पैसा देना पड़ता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है टैक्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द टैक्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने डिविडेंड दिया, प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में क्योंकि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो उन्हें मनी मिल जाएगी, सरकार को पैसा मिल जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये है फाइन्स, पेनाल्टीज और जो लोग पे करते हैं, जो भी पैसा हम पे करते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के वजह से आता है। डिफेंस पे इतना पैसा चला जाता है। स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, स्टेट का शेयर। पेंशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज या डिफेंस के जो एम्प्लॉयज हैं उनको पैसा देने में 6%, अदर एक्सपेंडिचर 10%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 9% मनी खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने टोटल बजट की 9%। क्लियर? नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड और ये सब आता है। आदित्य आप कल कहाँ थे? गाइज अगेन those of you who face glitch in the while logging into the video or while video is starting or not starting, watch the session in the incognito mode, try clearing the cache of your system। कैसे कैश क्लियर किया जाता है गूगल कर लेना, सिस्टम में जो जंक रहता है वो सब क्लियर किया करो, और गूगल क्रोम को अपडेट कर लो। ये छोटे छोटे से फिक्सिंग हैं जो आपको फिक्सिंग करनी होती है पहले से, ये हमारे एंड से अगर होता तो ये सभी के लिए होता है ना, तो आपके एंड पे ही ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो उसको फिक्स किया करो खुद से। नाउ मेजर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि पीए का टर्म क्या है। द टर्म पीए इज मेंशन प्रोविजनल एक्चुअल्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रोविजनल है लेकिन एक्चुअल है, ये दिसंबर में आता है। जैसे 2013-14 अगर साल है, 2013-14 के दिसंबर 2013 में जो डेटा आया हुआ होगा, जो डेटा आया होगा गवर्नमेंट के पास, वो प्रोविजनल एक्चुअल होगा। बजट अगले साल के बजट के
प्रेजेंट होने से ठीक पहले। नेक्स्ट ईयर का बजट कब प्रेजेंट होना है? 2014 में। 1 अप्रैल 2014 का बजट कब प्रेजेंट होना है? फरवरी 2014 में। दिसंबर तक जो गवर्नमेंट के पास में डेटा आता है उसे प्रोविजनल एक्चुअल बोला जाता है, ठीक है। सैलरी, पेंशन और ये सब लिखा जाता है इसमें। अब आगे चलते हैं फटाफट। तो here's a look at the government's expenditure in a nutshell. Total expenditure 30,42,230 करोड़, राइट। 2020-21 का गवर्नमेंट का ये खर्चा है। अर्बन डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट इतना खर्च करने जा रही है। Why am I showing this to you? So that you should have a clear idea कि कैसे बजटिंग होती है। अदर्स, पेंशन्स में इतना पैसा जाएगा, जो हमने 6% देखा था वो ये है, ठीक है। 3,23,000 डिफेंस, मेजर सब्सिडीज, okay, major subsidies, development of northeast, there is a ministry called as Ministry for Development of Northeastern Region, donor ministry. Education 99,312, energy 42,725, external affairs 17,347. Clear? So all these things are there. Now total expenditure data, the union budget डॉक्यूमेंट्स CGA, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो डेटा दिया है ये सारा कुछ यहाँ पे निकल के आता है। अगेन इसको थोड़ा सा देख लोगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले को इसको देखने की जरूरत है, ठीक है। कैसे पैसा खर्च करती है सरकार, टोटल ये इतना खर्चा हम कर रहे हैं, इसमें से जो बजट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या होता है लिखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर दी स्कीम्स which are launched by the central government. Centrally sponsored schemes are the schemes which are launched by the central government on the subjects given in the state list. Centrally sponsored schemes are the schemes which are launched by the central government on the subjects given in the state list. These centrally sponsored schemes are partly funded by the central government and partly funded by the state government. Okay. Clear? These schemes are for the purpose of achievement of nationally important goals. These schemes are for the purpose of achievement of nationally important goals. Today there are 29 centrally sponsored schemes. अभी के लिए इतना बहुत है. Centrally sponsored schemes is a different topic in the
गवर्नेंस टॉपिक, ओके, इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक. अभी के लिए पार्टली फंडेड मतलब आधा पैसा, 60-40, 75-25, 75% money would be given by the central government and 25% money would be given by the state governments, okay, like that. रेशो यही रहता है कि जो टोटल स्कीम पे जो खर्चा होना है, बजट है किसी स्कीम का, मान लो 15,000 करोड़, उसमें से 75% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 25% स्टेट गवर्नमेंट, ओके. तो कुछ इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया जाता है. 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 5,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी. क्लियर? अब चलते हैं आगे. Fiscal deficit. What is the definition of fiscal deficit? Total expenditure, revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipts other than borrowings. Revenue receipts plus capital receipts other than borrowings. ठीक है, borrowings को माइनस करके, क्योंकि borrow करने के लिए तो हम fiscal deficit निकाल रहे हैं. क्लियर? कितना पैसा आएगा? fiscal deficit का एक और फॉर्मूला है budget deficit minus budget receipts. क्लियर? तो दो फॉर्मूले से हम फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. डन. In fact, fiscal deficit is the estimation of total borrowings by the government. It is often called gross fiscal deficit. Gross fiscal deficit is equal to borrowing from the RBI. Gross fiscal deficit is equal to borrowing from RBI plus borrowing from abroad plus net borrowing at home. Clear? Net borrowing at home. Done? Anybody having any doubt? Spend 1 minute on this. Please spend 1 minute on this, read it, figure out if you have any doubt or not. आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर देना. आज से सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस अब थोड़ा शुरू कर देना. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट थोड़ा हमने शुरू कर दिया उसका. तो आज मैंने उसमें क्वेश्चन भी दिया था. कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अटेंड करी उनको पता होगा, जिन्होंने लाइव अटेंड किए. अब रिकॉर्डेड के चक्कर में ये पता लगा कि रिकॉर्डेड ही नहीं हुई क्लास तुम्हारी मेमोरी में, है ना, कभी देखी ही नहीं ओपन करके. तो ऐसा मत करना, अपने साथ जुल्म, देख लेना उन क्लासेस को. ओके. नाउ निधि एंड बाकी के लोग जो नहीं थे, सो रहे थे, दोपहर के 2 बजे का टाइम भी कुछ ऐसा होता है ना. नाउ रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. कर लोगे, इस टेबल को देख लोगे अच्छे से. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. देखो, कल के, आज मैंने आपको बताया ना कि कल की जो पेमेंट्स थी उनमें हमारा 18% पैसा चला जा रहा है. हम ये देखना चाहते हैं कि लेगेसी डेट, अगर पिछला कर्जा ना होता, यूपीए सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने या उससे पहले की गवर्नमेंट्स ने अगर कोई डेट ना बोरो किया होता, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती, है ना. तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती. अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे हम? फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरीली हमारा इस साल का डेफिसिट क्या है. मेरा फिस्कल डेफिसिट है 54 करोड़. इसमें से 18 करोड़ तो मेरे को पिछले साल के पैसे पे करने हैं. तो मेरा एक्चुअल डेफिसिट कितना है? प्राइमरी डेफिसिट कितना है? प्राइमरी डेफिसिट, राइट डाउन अ सिंपल डेफिनेशन. वेयर होम, पारुल होम कहां पे? वेयर इज प्राची? तुम लोग जो इरेगुलर हो रहे हो ना, ये दिक्कत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इंडिया में. ये अब ठीक है, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आपकी प्री कंसीव्ड नोशन है. तुमने तो पढ़ाई नहीं करी अभी तक, तो तुम्हें क्या पता ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या है ना. तुम तो सीधा ऑनलाइन में आ रहे हो.
तो फिर रेगुलरिटी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही? नेट बोरोइंग एट होम का मतलब है डोमेस्टिकली कितने पैसे बोरो करें हैं, ठीक है। नेट बोरोइंग एट होम का मतलब है डोमेस्टिकली फ्रॉम विद इन द कंट्री कितने पैसे बोरो करें हैं, क्या? डन। borrowing from abroad plus net borrowing at home. डन। इसमें और कुछ पढ़ाने का है नहीं। देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्राउडिंग आउट। नेट बोरोइंग एट होम का मतलब सबको क्लियर है? पढ़ लिया पारुल? प्राइमरी डेफिसिट समझा रहा हूं। यहां पे एक टर्म देखो, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट बेसिकली मीन्स व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट borrows too much of money, when the central government borrows too much amount of money this leads to क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो 4-5 लोग लाइन में लगे हैं, अंबानी, अदानी, बिरला, नादानी, ठीक है, जो भी हैं, तो जब 4-5 लोग लाइन में लगे हैं ऐसे 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 ऐसे, ऊपर से गवर्नमेंट के सेक्रेटरी आए, बोले कि SBI की ब्रांच है ये और हमें पैसे बोरो करने हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो बोरो नहीं कर पाते, दे आर क्राउडेड आउट। हटो सामने से, हटो सामने से, भीड़ को हटाते हैं ना जैसे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये है क्राउडिंग आउट। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट owing to high fiscal deficit reduces the availability of funds in the money market. Money market is something we will understand in the coming days for the private investors. समझ में आया? टाटा, अंबानी, अदानी, इनके लिए कोई पैसे बैंक के पास बचते नहीं, क्योंकि बैंक के पास में तो लिमिटेड पैसे हैं और वो लिमिटेड पैसे गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग अवे। When the government borrows too much amount of money ड्यू टू हाई फिस्कल डेफिसिट, लिखा है वहां पे, वही का वही है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल मतलब ये है, देखो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, मान लो 2024 में, इफ़ आई एम दी प्राइम मिनिस्टर, कोई पता नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, पढ़ाने वाला भी बन सकता है, चाय वाला भी बन सकता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2024 में, अब 2014 से लेकर 2014 से लेकर जो 2024 की जो गवर्नमेंट ने लोन्स बोरो करे थे 10 लाख करोड़ रुपीस के, उस पर मेरे को 3% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, ठीक है। 10 लाख करोड़ के लोन्स थे तो 3000 करोड़ रुपीस मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मेरा इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है, जब 2024 से 2025 में मैं लेके आया राजनीति सुधार योजना और बाकी सारी योजनाएं, तो मेरा डेफिसिट था 53,000 करोड़ रुपीस। अगर मेरा ये 3000 करोड़ रुपीस डेफिसिट नहीं होता तो मेरा डेफिसिट कितना है, 50,000 करोड़ रुपीस। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ लाइसेंस राज यहां पे नहीं आएगा प्रतीक, ठीक है। तो यानी कि डेफिसिट, ग्रॉस डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रॉस
fiscal deficit minus interest payment of previous years is equal to net fiscal deficit, which we call as primary deficit here. Clear? मतलब समझ में आ गया? लिखा तो वो है ही. It is the difference between the fiscal deficit and interest payment. When interest payments are, इसको इस वे में लिख लो, when interest payments are subtracted when interest payments of, ऐसे लिखो, when interest payments on the loans of previous years, when interest payments on the loans of previous years, when interest payments on the loans of previous years, when interest payments on the loans of previous years is subtracted from the fiscal deficit of a given year. When interest payments on loans of previous years is subtracted clear? It reflects the extent of borrowings by the government when interest payment is not accounted for. ठीक है, एग्जैक्ट बोरोइंग कितनी है सरकार की, इस साल की बोरोइंग कितनी है, समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? रेवेन्यू डेफिसिट जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो बोरोइंग करनी पड़ती है. फिस्कल डेफिसिट टोटल डेफिसिट. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. फिस्कल डेफिसिट other than borrowings. ठीक है, it reflects the extent of borrowing by the government when interest payment is also accounted for. Here interest payment is not being accounted for. High fiscal deficit points to the lack of fiscal discipline in the country. It is a hurdle in the process of GDP growth. समझ में आ गया? Since 1997, the RBI stopped being the primary subscriber of treasury bills. ये सारा कुछ legacy जो है इसको थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से. Deficit monetization as a topic has also been covered. तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सारे कॉन्टूअर्स हैं इसके. आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू दीज पीपीटीज. हम कैसे कैसे डेफिसिट को फिनेंस कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं. लाइन बाय लाइन मैं रीड करूँगा, उसका फ़ायदा तो होगा नहीं, है ना? कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो 2002 में व्हेन इंडियाज फिस्कल डेफिसिट वाज 5.7%, IMF validated it to be sustainable. The reasons were India was able to show a check on fiscal deficit, and secondly, at the same time, the forex reserves of the country were suitably higher to neutralize the negative impacts of higher fiscal deficit than the suggested levels, 4.5%. ठीक है, external grants are even better elements in this case. तो एक्सटर्नल ग्रांट्स अगर मिल जाएं कि उसको कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं, ना ही कोई रिपेमेंट लायबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें डेफिसिट को फिनेंस करने के लिए पास्ट में यूज़ की गई हैं हमारी कंट्री में ही. ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, दिस पार्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इज इट रियली एज सिंपल एज RBI प्रिंटिंग मनी, ये एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, तो क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, ये सारा कुछ डन. मीन्स ऑफ डेफिसिट फिनेंसिंग, और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टैक्सेस, जो कि हमने कल समझे.
मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिर फिस्कल पॉलिसी में हमने कल समझा कि होता क्या है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग एक्ट करना होता है सरकार को. व्हेन इन्फ्लेशन इज टू स्ट्रांग द इकोनॉमी में get into a slowdown. In such a situation, the government can use fiscal policy to increase taxes to suck the money out of the economy. जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन लाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गरीब आदमी और गरीब होता चला जाएगा, राइट? Who does fiscal policy affect? Unfortunately, the effects of any fiscal policy are not the same for everyone. Depending upon the political orientations and the goals of the policy makers, a tax cut could affect only the middle class, which is typically the largest economic group. है ना? 70% लोग इंडिया में मिडिल क्लास ही हैं. 1-2% हैं बहुत अमीर हैं, जो अंबानी, अदानी या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. In times of economic decline and rising taxation, it is this middle class group that may have to pay more taxes than the wealthier upper class. Middle class के लिए taxes बहुत ज़्यादा पिंचिंग हो जाते हैं, हर्टिंग हो जाते हैं, तो ये लोग सरकार को वोट नहीं देंगे. इसीलिए सरकार क्या करती है, डिसीजन लेती है कि पैसे स्पेंड किए जाएं, इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए. तो फिस्कल पॉलिसी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैसे डिफरेंट होती है? कैपिटलिज्म इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर ड्रिवन बाय प्राइवेट ओनर्स. जैसे आज हमारे यहाँ पे है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवाद, capitalism, and the individuals rather than the government. 80% of India's GDP is being earned by the private sector companies, on which government of India is levying taxes, out of which government is incentivizing the private sector to do some things which are required for economy and not to do some other things which are not required for economy. This is called as indicative planning. In the capitalistic economy, लिख लो, इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यस हर्ष, ठीक है. इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इंडिकेटिव प्लानिंग is adopted by the government. Indicative planning is adopted by the government. Indicative planning is adopted by the government. Indicative planning means that government will only be indicating the private sector indicative planning means that government will only be indicating the private sector through incentives and disincentives. As to, in the indicative planning, government will only be indicating
indicating the private sector through incentives and disincentives as to in which sector to invest and in which sector not to invest respectively. समझ में आया? किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इंसेंटिव दे दो. जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से नहीं इन्वेस्ट कराना, इंसेंटिव मत दो. ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो कैपिटलिज्म में ऐसे काम करती है सरकार. तो गवर्नमेंट इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वर्क्स इन दिस वे. सबने लिख ली ये डेफिनेशन? In other words, government steers the economy. Government does the steering function. Steering government के पास में होता है. Rowing का जो काम होता है, rowing मतलब घसीटना, ठीक है, आगे चलाना. In the indicative planning, in other words, government does the steering function and private sector does the rowing function. ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि सरकार इकोनॉमी को चला रही है. गवर्नमेंट तो क्या करती है, सिर्फ पॉलिसीज बनाती है आजकल, है ना. तो प्राइवेट ओनरशिप एंड वॉलंटरी ट्रेड आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट विच इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. मोस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम लिबर्टेरियंस टू कीन्सियंस सपोर्ट द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट हैविंग सम इन्वॉल्वमेंट इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. तो जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वॉल्व होती है इंडिया में, तो हम उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, वेयर गवर्नमेंट हैज गॉट सम से इन द रनिंग ऑफ द इकोनॉमी, सम से, वेयर द गवर्नमेंट इज हैविंग सम से, जैसे कि कुछ ना कुछ आवाज सरकार की रहती है. जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. तो हमारे यहाँ पे साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो हमारे यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है, दोनों को मिक्स करा के चलते हैं. तो जहां प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही जाने को रेडी नहीं है, वहां फिर गवर्नमेंट की कंपनीज खुद इन्वेस्टमेंट करती हैं. गॉट इट? तो दिस इज देयर. अब आगे देखते हैं. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. एंटरप्राइजेज आर टोटली फ्री. क्लियर? रोविंग मीन्स जो रोवर अपने लॉन में देखते हो ना, कि एक आदमी जो है स्टीयर कर रहा होता है पीछे से और दूसरा आदमी उसे खींच के चल रहा होता है ना. क्लियर? Yes, ROWING. Clear? Then ठीक है, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी फिस्कल एंड ये सारा कुछ हो गया. सोशलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड. हमारे यहाँ पे पहले सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ सोशलिस्टिक टिल्ट. इंडियन इकोनॉमी इन द इनिशियल स्टेजेस वाज मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ सोशल टिल्ट. टिल्ट मतलब सोशलिज्म की तरफ झुकी हुई थी चीजें. ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ नहीं थी. व्हेन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ये थी प्राइमरी डेफिसिट की, अर्शिका. ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट.
तो दिस इज देयर. नाउ फिस्कल पॉलिसी इन मिक्स्ड इकोनॉमी. गवर्नमेंट्स में सीक टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ by taxing the private sector and using funds. फिस्कल पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ इस तरह काम करती है. तो ये एक बार आपको समझ में आ गया सारा डॉक्यूमेंट. अगर हमने एक बार कवर कर लिया तो फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिस्कल पॉलिसी इन मिक्स्ड इकोनॉमी. गवर्नमेंट्स में सीक टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ बाय टैक्सिंग द प्राइवेट सेक्टर. एंड जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कैसे होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, and using the funds from taxes to promote social objectives. Trade protection, subsidies, targeted tax credits. टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको, टैक्स पे वेवर मिलेगा यदि आप झांसी में इन्वेस्टमेंट करोगे या यदि आप सोलर पैनल्स में इन्वेस्टमेंट करोगे. ठीक है, इस वे से प्राइवेट सेक्टर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है. प्राइवेट सेक्टर जा रहा होगा शायद थर्मल पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी इंसेंटिव्स की वजह से सोलर पैनल्स में एडवांसमेंट हो गया, है ना. ये सारी चीज़ें सरकार करती है. फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए. तो फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन. एंटरप्रेन्योर्स इन द फ्री मार्केट आर एबल टू मेक प्रॉफिट. फ्रीडम टू सेट अप बिजनेस. प्राइजेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस. क्लियर. अब यहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी. गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं. टैक्सेस ऑन डीमेरिट गुड्स. डीमेरिट मतलब द गुड्स विच आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, कि हमें क्या खरीदना चाहिए इस टाइम पे. बीमर खरीदी, BMW परचेज करनी चाहिए या फिर मर्सिडीज परचेज करनी चाहिए. कुछ नहीं परचेज करना चाहिए, हमें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसीलिए ऐसी महंगी गाड़ियों पे टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं. ठीक है, कैसे? सेस या GST कॉम्पेंसेशन फंड में जो पैसा जाता है, कॉम्पेंसेशन सेस का टैक्स लगाया जाता है. ये मिक्स्ड इकोनॉमी को डिपिक्ट करता है ये मॉडल. ठीक है, क्लियर. प्लानिंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी, ये खुद पढ़ोगे थोड़ा सा गाइज, क्योंकि मैं सीधा आना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट्स पे जिसमें कि हम GST कवर कर लें फटाफट. इंडिकेटिव प्लानिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया, इंडिकेटिव प्लानिंग इज फाउंड इन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज एज वेल एज इन मिक्स्ड इकोनॉमीज. वट एवर आई एम सेइंग यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब, थोड़ा सा उसका एनहांस्ड वर्जन ही लिखा हुआ है. समझाने का काम मैंने कर दिया. जैसे वो लॉन मोवर होता है ना, वो जो एक आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है और दूसरा धक्का देता है, मोटर चलती है, फिर वो क्या है? रोइंग स्टीयरिंग फंक्शन है. ठीक है, अब ये मान लो कि प्राइवेट सेक्टर जो है खींच रहा है उस मशीन को आगे. ठीक है, और सरकार जो है इंडिकेट कर रही है कि इस तरफ मुड़ना है या उस तरफ मुड़ना है. क्लियर. तो ये है इंडिकेटिव. सरकार जिस तरफ इंसेंटिव्स देगी प्राइवेट सेक्टर उस तरफ काम करने लग जाएगा. जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंसेंटिव्स दिए तो रिलायंस वहां पहुंच गई. फिर सरकार ने राफेल में थोड़े इंसेंटिव्स दिए, फिर वो फ्रांस पहुंच गए. ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ में जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो छोड़ो, जैसे कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है या फिर आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए तो प्राइवेट सेक्टर्स ने हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए. राइट. तो प्राइवेट सेक्टर ही पैसा इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट एक रीजनेबल रिटर्न देती है. कहीं कहीं जगह पे इंडिकेटिव या मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने GMR बिल्ड टेक के साथ में हाथ मिला लिया. प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या बनाने के लिए? नेशनल हाईवे 420 बनाने के लिए. ठीक है, ये सब चलता है यहाँ पे. स्टिमुलस होता है, जैसे कि स्टिमुलेंट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ में सोडा डालते हो वो स्टिमुलेंट है, कैटलिस्ट. ठीक है, तो कभी कभी जब इकोनॉमी स्लो चल रही होती है उसको पुश देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल स्टिमुलस में टैक्सेस को कट कर देती है. टैक्स कट कर देगी तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि अच्छा, पहले मैं जब अर्न करता था 100 करोड़ तो 30 करोड़ टैक्स में चले जाते थे. अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इस साल कमाई करोगे तो आपको 22% ही टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 30% और 28%. ठीक है, PM आवास योजना, ये सब काम करवाए जाते हैं, सरकार प्राइवेट सेक्टर से करवाती है. ठीक है, तो इट कम्स एट अ हैवी कॉस्ट. प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट चार्ज करता है, कभी कभी प्रॉफिट इतना चार्ज हो जाता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है कि लॉस ही हो जाता है गवर्नमेंट को. राइट.
तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे। अब फटाफट से पहले जीएसटी वाले पॉइंट पे आते हैं। इंडिया टू प्लान टैक्स हॉलीडे टू विन न्यू इन्वेस्टमेंट्स। अब ये एक और जरिया रहता है कि टैक्स हॉलीडेज प्लान करी जाती हैं। अब देखा कि झांसी में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और जापानीज इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां वहां से रिपोर्ट करी जा रही हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इफ एनीबडी वुड सेट अप अ हॉस्पिटल एट झांसी, उनको 5 साल का टैक्स हॉलीडे। तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल कहाँ पे सेटअप करेगा? झांसी बॉर्डर पे, ताकि बाहर के पेशेंट भी वहाँ पे आ जाएं और झांसी के पेशेंट भी वहाँ पे ट्रीटमेंट ले पाएं। इससे गवर्नमेंट का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे जो भी इनकम होगी उस हॉस्पिटल से गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करना फॉर अप टू 5 ईयर्स। दिस इज कॉल्ड एज टैक्स हॉलीडे। ठीक है, कभी 10 ईयर्स हो सकता है, कभी 5 ईयर्स हो सकता है। ऐसे ही कुछ भी करवाना होता है अगर प्राइवेट सेक्टर से, तो सरकार क्या कहती है? ये लो कैरेट, ठीक है, कैरेट दे दिया, गाजर खाओ और आ जाओ यहाँ पे। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो प्रपोजल टू गिव अ 10-year फुल टैक्स एग्जेम्पशन टू कंपनीज मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपवर्ड्स ऑफ $500 मिलियन। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इन्वेस्टमेंट कराना है, मेडिकल डिवाइसेस इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? इंडिया को बहुत सारे डॉलर्स बाहर देने पड़ रहे हैं, रुपीस बाहर देने पड़ रहे हैं, डॉलर्स खरीदने पड़ रहे हैं, और फिर उन डॉलर से हम पे करेंगे। इससे हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना डोमेस्टिकली मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है बेयर, उस कंपनी को इंडिया में अट्रैक्ट करना है, तो चलो अब ठीक है, इनको क्या करेंगे? ये अगर हार्ट स्टेंट्स बनाएंगी इंडिया में, मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगी, तो हिप इम्प्लांट है या नी कैप्स हैं, तो वो अगर ये इंडिया में बनाएंगी तो इनके 10 साल तक कोई हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाता है और इंडिया में ही गुड्स बनेंगी, और इस कंपनी का भी फायदा कि इसको 10 साल तक टैक्स नहीं पे करना, इंडिया को डॉलर्स नहीं परचेज करने पड़ेंगे पेमेंट्स करने के लिए। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो इस पे आते हैं। अब पहले देखते हैं जीएसटी। जस्ट 1 मिनट। Now, just 1 minute. Just allow me 1 minute, guys. Allow me just 1 minute.
So the PPT which I am going to take recourse to now will help you understand the factual details only. Okay. Rest of the things we will be covering the current जो चीज़ें हैं उसको हम बाद में कवर करेंगे. Okay, what I am doing is I am sharing this PDF with you. PPT is not available as of now. Okay, I'll try teaching to the PDF only. तो जीएसटी से पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी अ सिस्टम विच वी कॉल एज वैट सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, राइट. अब वैट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि वैट सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम वाज एक, हर स्टेट अपने अपने सीलोज में काम कर रही थी. तो एवरी स्टेट, पहले आप देखोगे कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंस विद एनीवेज. तो पहले क्या होता था जीएसटी में, हर इसमें वैट सिस्टम में हर स्टेट का अपना अपना एक सिस्टम था. यानी कि राजस्थान में सबसे पहले, जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले एक सिस्टम था जिसमें ये समझो कि स्टेट, अगर एक कोई गुड बनाई जाती थी, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो जैसे ये अगर हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा स्टेट में कुछ भी मैन्युफैक्चर होगा तो हरियाणा के प्रोड्यूसर वन ने, मान लो कि मैं वहाँ पे एयर कंडीशनर का प्लांट लगा रहा हूँ, ये है स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है. एयर कंडीशनर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से मैंने कंप्रेसर परचेज किए. तो पहले जब कंप्यूटराइजेशन नहीं होती थी, कंप्रेसर लगता है ना एसी में या रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए, जो बड़ा सा सिलेंडर टाइप, मैं यहाँ से कंप्रेसर परचेज करूँगा. प्रोड्यूसर वन ने, जिन्होंने ये कंप्रेसर बनाया है, उन्होंने इस कंप्रेसर को बनाया 8,000 रुपीज़ में. 8,000 रुपीज़ का ये जो कंप्रेसर है, मैं कितने में परचेज करूंगा, 10% टैक्स लग जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को चला गया 10%, 8,800 रुपीज़ में. मैंने एक फाइनल एसी बनाया इंक्लूडिंग दिस कंप्रेसर. क्या प्राइस रखा मैंने उस एसी का, 25,000. गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगा दिया 25,000
प्लस कितना 2500 रुपीज, जो वैट से भी पहले का सिस्टम था जिसे हम कल एक्साइज ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे, उसमें कुछ ऐसा होता था। अब ये एसी कितने का हो गया 25,000 प्लस 2500, बट कायदे के हिसाब से ये जो मैंने 800 टैक्स पे किया है, इनपुट रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया है ना, वो टैक्स इसमें रिफंड मिलना चाहिए आइडियली। तो आई शुड हैव पेड अ टैक्स ऑफ, while pricing my AC the tax should have been, तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ 27,500 इट शुड बी कितना 26,700। क्यों? क्योंकि ये 800 जो मैंने पहली स्टेज पे किया है while purchasing this compressor should have been subtracted, right or wrong? ये 800 एक्साइज ड्यूटी है, यू आर राइट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पे जो ड्यूटी लगती है एक्साइज ड्यूटी, ये वो है 800 नहीं, 8,000 तो कंप्रेसर का प्राइस है, दिस इज द प्राइस, 800 रुपीज उस पर टैक्स है एट द रेट ऑफ 10%, राइट। लॉजिकली आई शुड हैव पेड टैक्स on the final product. Price should not have been 27,500, it should have been 26,700 because 800 is already taken. What I am telling you is tax, ये क्या है, compressor, compressor is an input. compressor जो एसी में लगाया जाता है वो इनपुट है ना, इनपुट पे जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट नहीं मिलता था पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था पहले, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि अब जब आप दिल्ली से राजस्थान की तरफ जा रहे हो तो आपने जो पहले दिल्ली में जो टैक्स पे किया है टोल टैक्स, उसको राजस्थान में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। चलो राजस्थान में तो छोड़ देते हैं, अभी उसको दिल्ली में ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, दिल्ली में जो आपने टैक्स पे किया उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होती थी, एंड कंज्यूमर को गुड्स पड़ती थी महंगी, ठीक है, एंड कस्टमर को गुड्स महंगी पड़ती थी। अब इसमें क्या होता था, एक चोरी भी की जाती थी, कंप्रेसर बना लेकिन बना ही नहीं, मतलब कंप्रेसर रात में बिका। कंप्रेसर को फैक्ट्री गेट जो कल हमने बनाया था ना इस क्लास में, फैक्ट्री गेट से कितने बजे निकाला जाएगा, रात को 12 बजे, ठीक है। अब ये फैक्ट्री है जेके कंप्रेसर्स लिमिटेड मान लो, ठीक है। अब इसका गेट रात में ही खुलेगा, ट्रक व्रक आएगा सनी देओल और ये कंप्रेसर पहुंच गया एसी बनाने वाली कंपनी में, एसी बना लेकिन बना ही नहीं। तो इसीलिए सरकार के लिए लालच बुरी बला हो रही थी, ठीक है। लालच क्या है, अब सरकार ने सोचा 10% इस पे लगाएंगे, 10% फिर टैक्स पे टैक्स लगाना जो फिनोमिना है, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था ये तो, क्योंकि अगर आप इस 800 को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो यू आर चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स। 10% जो आपने टैक्स लगाया है वो आपने 800 रुपये पे 80 रुपये दोबारा से लगा दिए, 80 रुपीज, रादर देन सब्ट्रैक्टिंग दिस 800 रुपीज यू आर चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स। इसीलिए 2002 आते आते क्या हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने, यूपीए 1 ने, कांग्रेस ने ये कहा कि स्टेट्स में ही सही, अभी हम सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में ही सही अपना एक वैट डिपार्टमेंट बनाया जाए, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को खत्म करके वैल्यू एडेड टैक्स की बात करी गई। टैक्स विल बी चार्ज्ड गोइंग फॉरवर्ड ऑन द वैल्यू एडेड अलोन। अब जैसे मैंने कंप्रेसर की बात करी तो कंप्रेसर में क्या क्या लग रहा है, कंप्रेसर सॉरी मैंने एसी की बात करी तो एसी में क्या क्या लग रहा है, एसी इज इक्वल टू कंप्रेसर प्लस रिमोट, ठीक है, रिमोट बनाने वाली कंपनी अलग है, प्लस कूलिंग गैस, प्लस जो उसकी चेसीज होगी, जो उसकी बॉडी होगी, सभी पे जब वैल्यू ऐड हो जाएगी तभी टैक्स लगेगा। अभी मैं सारे जो आइटम्स हैं अलग अलग भी ले सकता हूँ, 8,000 का कंप्रेसर,
आउटर बॉडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये बनी 2300 रुपीज़ की, 2500 रुपीज़ ले लेते हैं, 2500 रुपीज़ की। फिर हमारा और क्या बनेगा उसमें, प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं, रिमोट और रिमोट किट और ये सब, ठीक है, प्लास्टिक पार्ट, ये बने 8000, मान लो 5000 रुपीज़ के टोटल। फिर उसमें अब फाइनल हमारा ये बन गया एसी, ठीक है। जब मैंने ये 8000 रुपीज़ का ये कंप्रेसर बनाया, जब मैं इसे बेच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये किसके पास गया, एसी बनाने वाली कंपनी, क्या नाम है इसका, एलजी। एलजी ने जब इसे परचेज किया तो यहाँ पे टैक्स इंसिडेंट्स अराइज होगा। टैक्स इंसिडेंट्स मतलब वो इंसिडेंट जहाँ पे टैक्स चार्ज होगा जब सेल हो रही है, ठीक है। एवरी इंसिडेंट ऑफ सेल इज टैक्स इंसिडेंट्स। यहाँ पे 10% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। एलजी ने कितने का पे किया, 8000 प्लस 800, ठीक है। फिर जब चेसीज परचेज करी एलजी ने, तब दोबारा से 10% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये चेसीज एक अलग पार्ट है। कितना, 2500। लेट अस सपोज द टैक्स ऑन द स्टील बॉडी और द आयरन बॉडी वाज आल्सो 10%, 250 रुपीज़ ये टैक्स लग गया। एलजी ने कितने की परचेज करी, 2500 प्लस 250। प्लास्टिक पार्ट जब ये यहाँ पे बिकेगा, इस जंक्चर पे दोबारा से टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेल हो रही है, यहाँ पे भी सेल हो रही है। जब ये टैक्स लग रहा है तो कितना, अगेन 500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10%। अब बताओ एसी की कॉस्ट कितनी आई, 10,500, 15,500, ठीक है। अब एलजी फ्री तो बैठा नहीं, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ इज गुड बनानी है। 15,500 में उन्होंने क्या कर दिया, 9,500 प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। इसको मैं यहां पे ले रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। $15,500 ये आ गया, और ये टैक्सेस कितने हैं, 800, 1550, ठीक है, 1550। 15,500 में एलजी ने अपना जोड़ा प्रॉफिट 9,500, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 25,000, जो हमने एग्जाम्पल में ली थी। अब इस 25,000 पे वैट सिस्टम में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स विल बी चार्ज्ड only on the value that has previously been added at the point of life is good company। बाकी सबने तो वैल्यू ऐड करी तो टैक्स लग गया है। अब इस टैक्स का यहां पे टैक्स कितना लगा, टोटल इस पे 10% टैक्स है। 25,000 पे 10% अगर आप लगाओगे तो 2500, लेकिन 2500 में से जो ये ऑलरेडी ये जो टैक्स पे किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कितना, 1550। टैक्स कितना लगेगा, सिर्फ 950। क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड कितना है, 950 एट द रेट ऑफ 10%। समझ में आया। सेस वैस अभी छोड़ दो, लेट्स कीप इट सिंपल फॉर नाउ। टैक्स विल बी चार्ज्ड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। हाउ मच इज द वैल्यू एडेड, 25,000 माइनस, टैक्स को तो हम छोड़ रहे हैं, ये तो टैक्स है, ठीक है, माइनस 15,500, 9,500। 9,500 पे 10% लगाओगे तो 950। नोट कर लो इसको, जिसको नोट करना है। ये था वैट सिस्टम। क्लियर है सबको। डन। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है यहाँ पे क्लास में, फटाफट बोलो।
इससे पहले वाला जो सिस्टम था उसमें क्या था कि ये जो स्टील मेकर जो स्टील बना रहा है उसका नहीं पता, जो कंप्रेसर बना रहा है वो उसे सप्रेस कर ले रहा है, बता ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट को, जो एलजी बना रहा है वो सबके लिए लाइफ इज गुड कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट के लिए लाइफ इज बैड। क्यों? टैक्स देना ही नहीं। एसी बनते थे 1000, बताए जाते थे 700, ले दे के जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था उसका नुकसान हो रहा था, है ना, उसका नुकसान ही हो रहा था, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीएसटी क्या कहा कि सभी स्टेट्स अपने अपने दायरे में, पहले यहां पे अगर प्रोड्यूसर 1 है तो उस प्रोड्यूसर 1 को आप रिकॉग्नाइज करो, उसके लिए अपना एक वैट नंबर होगा। यानी कि मैं अगर जतिन वर्मा नाम से यहाँ पे राजस्थान में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मेरा वैट नंबर होगा। मैंने क्या प्रोड्यूस किया? मैगजीन। आगे बुक सेलर ने जो मैगजीन पर सेल करी, मेरे से परचेज करी 95 रुपीज़ की, उसने सेल करी 110 रुपीज़ की, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 15 रुपीज़ पे टैक्स लगेगा, 10%। अब जब सभी स्टेट्स में इंटरनली राजस्थान में सारे के सारे सेलर्स और प्रोड्यूसर्स रजिस्टर हो गए वैट में। वैट में रजिस्टर होने का मतलब ये है कि उनके पास अपना अपना सबके पास नंबर आ गया। यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर, एक आदमी किसी एक से कुछ परचेज करेगा, दूसरे को बेचेगा, राजस्थान गवर्नमेंट के वैट का जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो नेटवर्क है, उसमें वो ट्रांजैक्शन डिपिक्ट हो जाएगी। अगर ये पर्सन ये बोलेगा कि मैंने अगर ये स्टेट है राजस्थान की, इस पर्सन ने यहाँ से कंप्रेसर परचेज करे, ठीक है, तो राजस्थान के इस सिस्टम में, वैट सिस्टम में ये सारी डिटेल रिकॉर्ड हो रही है। कैसे? इसने जो अपना वैट टिन नंबर डाला होगा या वैट नंबर डाला होगा। अब एलजी के पास जब ये कंप्रेसर गया, एलजी ने बोला कि हमने 800 रुपीज़ टैक्स ऑलरेडी पे किया है, ये रहा वो बिल जो हमने लिया है, किससे? जेके कंप्रेसर्स से, जेके कंप्रेसर्स प्राइवेट लिमिटेड। सरकार ने बोला कि नंबर डालो इसमें सिस्टम में, एलजी ने नंबर डाला, बिल नंबर, और इस कंपनी का, जेके कंप्रेसर्स लिमिटेड का वैट नंबर। तो वो डिटेल निकल आई कि हाँ 14 फरवरी 2019 को टैक्स पे किया गया है, ठीक है। अब फिर दिक्कत क्या हुई? ये सारे जो नंबर्स थे, वैट नंबर्स, ये स्टेट स्पेसिफिक थे। कौन सी स्टेट? राजस्थान, ठीक है। अब अगली स्टेट एक और है, हरियाणा। वैट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? जब राजस्थान से ये गुड्स हरियाणा में गई, हरियाणा के पास राजस्थान के वैट का कोई डिटेल नहीं है। फाइनल स्टेप ये, हम आगे बढ़ रहे हैं जीएसटी की तरफ, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल, राजस्थान ने जब अपने एरिया में, अपनी जुरिस्डिक्शन में सभी प्रोड्यूसर्स के, शॉप नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 230, सबके वैट नंबर इशू हो गए। कोई कुछ भी खरीदेगा वो ट्रांजैक्शन यहाँ कैप्चर हो जाएगी, क्योंकि वो बिल परचेज करेगा। अगले आदमी को फायदा है। अगले आदमी को क्या फायदा है? जो इस प्रोड्यूस को, जो इस प्रोडक्ट को बिल पे खरीदेगा, उसको फायदा है। क्या? कि उसको वो प्रोडक्ट 2500 का नहीं या 8800 का नहीं, उसको वो प्रोडक्ट 8000 का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 800 का जो वो टैक्स पे कर रहा है, उसको कुछ इस हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी ना, ये 800 रुपीज़ यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, है ना, तो उसके वो टैक्स माइनस हो जाएगा, इसीलिए वो पीछे वाले से बिल मांगेगा। जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है उसको बिल देना पड़ेगा फ्रंट सेलर को। फ्रंट सेलर को फायदा ये है कि जब वो कुछ सेलिंग करेगा तो उसने जो पहले टैक्स पे किया है 800 रुपीज़, इस फर्स्ट वाले को, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट का ये फायदा है, इनपुट टैक्स देने से भले ही डबल टैक्सेशन ना हो, बार बार एक ही आइटम पे टैक्स ना मिले, लेकिन एटलीस्ट जो गुड्स रात को 12 बजे बेची जाती थी, जो बनती थी लेकिन बनती नहीं थी, वो गुड्स कैप्चर होने लग जाएंगी। समझ में आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉज देयर इन दी वैट within the jurisdiction of the state, within just Rajasthan. If now, but the problem, अभी के लिए सिस्टम समझ में आ गया। राजस्थान का अपना था, यूपी का अपना,
हरियाणा का अपना, पंजाब का अपना। यानी कि हर स्टेट का ये काम तो बहुत अच्छा हो गया कि अगर आप उस स्टेट से कुछ परचेज करोगे शॉप नंबर 1 से और फाइनली आप इसे बेचोगे शॉप नंबर 2 में या शॉप नंबर 450 में, तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास आपकी सेल की, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी डिटेल है। और जब आप आगे किसी को बेच रहे हो वो बिल मांगेगा। अब जब वो बिल मांगेगा तो उस बिल में आपको वैट ऐड करना पड़ेगा। एवरीबडी इज क्लियर विद इट। लेकिन एक दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि अगर हरियाणा में लोकेटेड गुड़गांव में मारुति कंपनी है, उसने राजस्थान में बनाया गया ये छोटा एसी कार में लगाना है, तो जो राजस्थान से जो एसी, छोटा सा एसी जो होता है वो 18,000 रुपये का आता है जो कार में लगता है, ठीक है। मान लो कि वो 25,000 का है, LG का वो छोटा एसी जो कार वाला एसी होता है, ठीक है। अब वो एसी यदि हरियाणा में हरियाणा से लिया जाएगा 18,000 रुपीज़ का, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा 1800 रुपीज़। ये जो टैक्स पे किया जा रहा था ये रह गया हरियाणा तक। अब जब वो हरियाणा में, ये रह गया राजस्थान तक। अब जब ये एसी यहाँ पहुँचा तो मारुति ने ये बोला कि हरियाणा सरकार को कि देखो हमने राजस्थान का वैट पे किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कब, कौन, कहाँ, कैसे? वी डोंट नो द सिस्टम ऑफ वैट इन हरियाणा। सो इंडिया वॉज वन कंट्री बट देयर वर 29 डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स. One tax system is not recognizing the tax paid in one jurisdiction for the sake of convenience of other. हरियाणा इस पे दोबारा से टैक्स लगाएगा। अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। हरियाणा में गुड्स बिकेंगी रात में, सुबह सुबह, राजस्थान में गुड्स जो बिकनी है वो सुबह ही बिकेंगी। लेकिन अगर ये गुड रात को, अगर ये गुड किसी दूसरी स्टेट को बेचनी है तो वो ट्रक रात में जाएगा। या ये वाली चोरी जो है चलती रही, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन स्टेज था। 2008 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को धीरे धीरे से कह के वैट सिस्टम लागू करवा दिया। इट गोज विदाउट सेइंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन, दैट यूपी वाज द लास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वैट इन 2008 अंडर BMW, बहन मायावती, ठीक है। यूपी ने लास्ट में अडॉप्ट किया। अब उसके बाद जर्नी शुरू हुई GST की तरफ बढ़ने की। अब GST में क्या है, चाहे आप गुड्स तमिलनाडु से परचेज करो या तमिलनाडु को बेचो, आपने जो तमिलनाडु में टैक्स पे किया है, जो आपका वैट नंबर था वो अब आपका GST नंबर बन गया। अब आप तमिलनाडु से कुछ गुड्स परचेज करके लेके आओगे, या हरियाणा में बनी जो मारुति है, या हरियाणा में, तमिलनाडु में बना जो उसका इंजन है, वो अगर हरियाणा में भी आएगा, उस इंजन पे 2,50,000 के उस इंजन पे अगर 10% टैक्स दिया गया है, मान लेते हैं, तो 2,500 टैक्स। कार जब निकल के आएगी 8 लाख रुपए की, उसमें से 10% टैक्स लगेगा उसके ऊपर 80,000 रुपीज़। उस 80,000 में जैसे ही आप बिल नंबर डालोगे कि आपने तमिलनाडु से जब इंजन परचेज किया था तो 25,000 यहाँ पे टैक्स पे किया था, वो टैक्स यहाँ से माइनस हो जाएगा। India became an economic union after 2016. In 2016, after GST bill was passed. India was a political union earlier, but it was not an economic union. India, that is Bharat, became this only in this year. समझ में आया? गुड्स एंड सर्विसेज में ये जो टैक्स, जो पहले पे किया गया टैक्स है, अब मेरा जैसे जो GST नंबर है वो है 07ABCDE12345। तो ये जो 07 है ये बताता है कि मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब का GST कोड अलग है। तो आगे बस मेरा पैन नंबर है ABCDE, जो भी मेरा पैन नंबर है उससे ये मेरा GST डिटेल पैन के साथ में जोड़ दिया गया। और जैसे जिन लोगों के पास में टिन था, वैट नंबर था, वो वैट भी उसमें सब्ज्यूम हो गया। अब वैट सिस्टम नहीं है, अब GST सिस्टम है। गॉट इट? इसीलिए इसको कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। देयर कुड बी मल्टीपल रेट्स ऑफ GST, बट सिस्टम इज वन। नाउ द सिस्टम इज टेकिंग
गिविंग क्रेडिट, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे जिस कंपनी के साथ में मैं पहले काम करता था, बैंगलोर बेस्ड, ठीक है, अब वो मेरे को इनकम देंगे तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की इनकम मानी जाएगी। अब उन्होंने मेरे को इनकम दी मान लो 1 लाख रुपीज, 18,000 रुपीज क्या है, मेरे को जीएसटी मिल जाएगा। उन्होंने आपसे फीस कलेक्ट करी, मेरे को जीएसटी दे दिया, ठीक है। आपके पास क्या बिल लेने का कोई इंसेंटिव है? प्रॉब्लम ये है कि जब अब मैं कुछ परचेज करूंगा, अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत ही अच्छी चीज ये है कि मान लो मेरे को ये एक एकेडमी है, उस एकेडमी ने मेरे को पे किया, ठीक है, एकेडमी ने मेरे को पे किए 1000, उस एकेडमी ने आपसे पैसे लिए, ठीक है, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ इस एकेडमी पे, ठीक है, इस एकेडमी को मैंने आपने कितने पैसे पे किए? आपने पे किए 50,000 रुपीज़, चलो मान लो आपने सब ने मिलके जितने भी पे किए मैटर नहीं करता, ठीक है, आपने बस यहाँ पे एजुकेशन पे जीएसटी पे किया 18%। अब इस सिस्टम में फ़ायदा ये है, जब ये एकेडमी मेरे को कितना टैक्स पे कर रही है, मेरे को इनकम पे कर रही है 1 लाख, तो क्योंकि मैं एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कंपनी को, तो मेरे को 18% जीएसटी भी देना होगा कंपनी को, क्योंकि इन्होंने मेरे को इंश्योर किया कि 1 लाख रुपीज़ आपका इन हैंड रहेगा, 18,000 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे, उस 18,000 रुपीज़ को मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होगा जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट पे जाके। बट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, इफ आई एम बाइंग अ कीबोर्ड, लॉजिटेक का मैंने कीबोर्ड परचेज किया, ये मेरे लिए इनपुट है, मैंने ये दिखाया कि मेरी 1 लाख इनकम में से मैंने 1000 का ये कीबोर्ड परचेज किया, जिस पे मुझे 12% टैक्स देना पड़ा 120 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो मेरे को 18,000 रुपीज़ जीएसटी पे करना है ना, मेरी जीएसटी रिटर्न में ये लिखा जाएगा 18,000 रिसीव्ड फ्रॉम दी सर्विस बायर, सर्विस जिस पर्सन ने मेरी अवेल करी है उस एकेडमी ने, और इसमें से 120 रुपये हमने अमेजन को दे दिए, ये बिल का नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जीएसटी बिल नंबर इतना इतना, और फिर हमने एक एसी परचेज किया 25,000 का, जिसपे हमने 2500 रुपीज़ जीएसटी पे किया, ठीक है। अब मैं नेट जीएसटी कितना, ये 2500 कौन पे करेगा? ये 2500 पे करेगा एसी बेचने वाला। एसी बेचने वाला कौन है? सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एलजी। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, सरकार को ये पता लग गया कि एलजी ने एक एसी जतिन वर्मा को सेल किया है। अगर एलजी ने उससे पहले ये बता रखा था कि 100 एसी बिके हैं, मेरे वाला एसी बनाया था लेकिन बताया नहीं था, बट अगर मैंने ये एसी क्या बिल साथ में अटैच कर दिया तो एलजी को बताना पड़ेगा, इसलिए एलजी अब डर के मारे ये बताएगा कि 101 एसी ही बने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरे को तो इसको बताने में फायदा है। मेरे को बताने में क्या फायदा है? What is the benefit to me in disclosing that I have purchased an AC? Because ये जो बड़ी एकेडमी है या टाटा कंपनी है या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने खर्चे दिखाएंगी, क्योंकि इनको अपना प्रॉफिट कम दिखाना है। ग्रॉस प्रॉफिट में से कल हमने देखा था ना, खर्चे माइनस करने होते हैं इनकम टैक्स कम पे करने के लिए, तो ये तो अपने खर्चे दिखाएंगे ही। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ में से 1 लाख रुपए अगर ये जतिन वर्मा को पे कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी औरों को पे कर रहे हैं, तो इनको इस 1 लाख रुपए पे 30% टैक्स कम पे करना पड़ेगा, जो हमने कल इनकम टैक्स समझा था। वैसे ही जब मैं ये 1 लाख रुपए इनकम, 1 लाख रुपीज़ अपनी इनकम दिखा रहा हूँ, तो उस 1 लाख में से मैं एलजी को जो 25,000 पे कर रहा हूँ, उस पर मुझे क्या मिलेगा? एसेट पे डेप्रीसिएशन मिलेगा। मेरा तो ये फायदा है, मेरे को एसी दिखाने में फायदा है, मेरे को 1 लाख रुपए पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं जो 25,000 का एसी है उस पे 15% डेप्रीसिएशन कम करके अपना खर्चा दिखा दूंगा, यानी कि कितना? 3750 रुपीज़ मेरे माइनस हो जाएंगे, मैं टैक्स कम अमाउंट पे करूंगा, ठीक है ना। और ये जो मेरी जीएसटी रिटर्न अब जाएगी, ये इनडायरेक्ट टैक्स की रिटर्न है। ये जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है, ये डायरेक्ट टैक्स की है, जो मेरे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ में फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। जीएसटी इज फॉर इंडिविजुअल्स
as well as for companies. ठीक है, GST for individuals, if my income is above 20 lakh rupees, I have to file a GST number. I have to obtain the GST number. Clear? मैं इनकम टैक्स भी पे करूंगा इन माई पर्सनल कैपेसिटी, बट सिंस आई एम द एंटरप्रेन्योर, इवन इफ आई एम नॉट अ कंपनी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ बिजनेसमैन. Every businessman whose income is above 20 lakh rupees, he has to pay GST. He has to obtain a GST number. And my GST number is linked with my PAN number. PAN number is used for income tax. मेरा जो GST नंबर है वो है 07ABCDE. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर दिस थिंग. 07 स्टैंड्स फॉर दिल्ली. ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 आगे के दो डिजिट्स हैं, मान लो ZN. ठीक है, तो ABCDE ये मेरा पैन नंबर है. ये जो 10 अल्फा न्यूमेरिक है, दिस इज माय पैन नंबर. गवर्नमेंट को ये फायदा है, जब इस अनअकैडमी ने मेरे को इनकम बताई कि कितनी इनकम है, तो इन्होंने मेरी इनकम भी बता दी गवर्नमेंट को मेरे GST नंबर से कि इतने पैसे हम उसको दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी बता दिया कि उसमें GST कितना है. GST कितना है? 18,000 है ना. दोनों चीजें बता दी गई, और ये कोड भी बता दिया. डेस्टिनेशन कौन सी है? दिल्ली में ये पैसे जा रहे हैं. कहाँ से जा रहे हैं? बैंगलोर से जा रहे हैं. बैंगलोर से ये पैसे जा रहे हैं, तो दिल्ली को GST इतना मिल जाएगा. समझ में आया? अब इससे सरकार के दो फायदे हैं. इनकम टैक्स भी पता लग गया, मैं अपना इनकम टैक्स इनकम नहीं छुपा सकता कि मेरे को 1 लाख रुपए अर्निंग मिली, इनकम नहीं छुपा सकता. दूसरा, मैं अपने खर्चे छुपाऊंगा नहीं. क्यों? क्योंकि जो खर्चों पे जो इनपुट टैक्स है, जो GST मैं पे कर रहा हूं, जैसे मैं अपना रेंट पे कर रहा हूं. अब अगर यहां का रेंट है 2,50,000, तो मेरे को जो, अब मेरी एकेडमी ले लेते हैं, JV's IAS एकेडमी. आपने जो फीस पे करी, उसके साथ में आपने मेरे को 18% GST पे कर दिया. मान लो आपने फीस पे करी 10 लाख रुपीज सबने मिला के, तो मेरे पास कितना आ गया? 1,80,000 GST. 10 लाख तो मेरी हो गई पर्सनल इनकम. ठीक है, जो मेरी पर्सनल इनकम जो पैन नंबर वाली है, जिसपे मेरे को इनकम टैक्स पे करना है. 1,80,000 इज व्हाट? 1,80,000 is the GST. Now this GST I have to pay to the government. Done? But out of this 1,80,000, I will subtract the amount of taxes that I have paid on camera, that I am paying to Airtel for internet, that I have paid on this remote. इसमें जो जो GST लगा है. अब जब मैं इस रिमोट की बिल मांग रहा हूं, तो इस रिमोट बनाने वाली कंपनी है लॉजिटेक. ठीक है, इस रिमोट बनाने वाली कंपनी की इनकम भी मैं बता दे रहा हूं सरकार को. अब अगर सब लोग ऐसा करने लग जाएं, टैक्स रेट भले ही परसेंटेज टर्म्स में कम हो, लेकिन गवर्नमेंट को सभी प्रोड्यूसर्स का, कैनन ने कितने कैमरे बनाए, ये डिजिटल बोर्ड्स कितने आए, लैपटॉप कितने आए, सारा कुछ पता लग जाएगा ना. और फिर मैं अपने खर्चे कम करने के लिए अपनी इनकम, जो कि 10 लाख इस एग्जाम्पल में है, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? उसमें से मैं माइनस करूंगा अपने एम्प्लॉयज की सैलरी. कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को क्या है, सैलरी किसी दूसरे को दी जा रही है, कोई बात नहीं, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वेलफेयर हो रही है ना. दूसरे की सैलरी अगर ज़्यादा हो जाएगी, उससे सरकार वहाँ से टैक्स ले लेगी. सरकार को तो फायदा है ना. नहीं तो टैक्स मैं दे दूंगा, तो मैं अपने खर्चे दिखाऊंगा कि मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा. सरकार बोलती है खरीदो, कम से कम तुम जब LG का AC खरीद रहे हो तो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है. कम से कम तुम जब ऑफिस चला रहे हो, तुम भी अर्न कर रहे हो, शिक्षा भी दे रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, GDP भी इंक्रीज कर रहे हो कंट्री का, और तुम नहीं तो कोई और दे देगा. अब गवर्नमेंट चाहती तो JV's या पहले वाली जो एकेडमी थी, उनसे डायरेक्टली बोल देते कि तुम ये टैक्स इनको दे दो. बट गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? प्रोडक्शन को इनकम के साथ जोड़ रही है. प्रोडक्शन टैक्स है ना GST एक वैसे, प्रोडक्शन कम सेल टैक्स, प्रोडक्शन को इनकम के साथ लिंक कर दिया. अब क्योंकि मैं प्रोड्यूस अपने लेक्चर्स इस एकेडमी को बेच रहा हूं, वो मेरे को इनकम दे रही है, लेकिन वो इनकम के साथ एक इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रही है. और उस इनडायरेक्ट टैक्स को मेरे को GST पोर्टल पे ही करना है. लेकिन मैं उसको Amazon को पे करूंगा, LG को पे करूंगा, लॉजिटेक को पे करूंगा. इससे क्या हो रहा है?
बस गवर्नमेंट को नंबर डालना है बिल का और ये पता लग जाएगा. गॉट इट? इनपुट टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स इनकम टैक्स है और जीएसटी की बात कर रहे हैं. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. नो, आई एम नॉट अ सैलरी. आई वॉज नेवर एट अ सैलरी विद देम. आई वॉज अ सर्विस प्रोवाइडर. Service provider is a different category, right? These days doctors are also being hired as a service provider. They are not on salary. If they hire me, if somebody hires me as a service provider, they have to pay me the goods and services tax because I am rendering my services to them. Clear? Now here altogether situation is different. Now that I am the owner of JVs, so I am an entrepreneur. You are not hiring me. I am providing the service to you. Since I am providing the service to you, you have to pay me the services tax. Clear? क्लियर है ये सबको? तो ये है जीएसटी का फायदा. जीएसटी में दो चीजें अवॉइड होती हैं. दो, एक तो पहले लिखो कैस्केडिंग इफेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स. अब कल इसको और क्लियर कर दूंगा मैं. टैक्स ऑन टैक्स बीइंग चार्ज्ड by the government. Cascading effect is tax on tax being charged by the government. Cascading effect is tax on tax being charged by the government. Cascading effect means tax on tax being charged by the government. This leads to increase in the final cost of goods. This leads to increase in the final cost of goods and services. This leads to increase in the final cost of goods and services for the end consumer. Leading to lesser consumption. लेसर कंजम्पशन होगी तो किसी का फायदा नहीं है. कहाँ अगर ये जीएसटी की जगह मान लो कि पहले टैक्स पे टैक्स लगता, फिर टैक्स पे टैक्स लगता, तो कितना फायदा होता? आपका जो कोर्स 40,000 का है वो 44,000 का होता. तो आप क्या करते कि छोड़ यार लेना ही नहीं है. तो लेसर कंजम्पशन होती. लेसर कंजम्पशन में क्या है? गवर्नमेंट का नुकसान होता ना. Could the earned GST by you be distributed in the purchase of different goods? That is what I am doing. GST that has been earned by me, that has been collected by me. Earn नहीं है, earn होता है तो वो तो मेरा हो गया. Collected by me from you guys is being distributed. Distribution एक गलत word है, ठीक है? Is being paid to the different goods and service suppliers to me. ठीक है. अब जैसे मैगजीन है, मैगजीन प्रिंट करने वाले को मैं जीएसटी अलग से पे करूंगा. वो मेरे को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रिंटिंग एटसेट्रा, तो मैं उसको पे करूंगा. अब सरकार को उसकी इनकम पता लग गई और उसके पास जीएसटी भी पहुंच गया. जीएसटी तो वो पे कर ही देगा क्योंकि नंबर देना पड़ता है, सब जगह पता लग जाएगा. अगर वो नहीं पे करेगा, क्योंकि मैं इंटरट्वाइंड हूं. इंटरट्वाइंड कैसे हूं? अमेज़न से
मैंने अगर ये माउस लिया 120 रुपए का, मैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि मैंने जो इनपुट्स यूज करी उन पे पे किए गए टैक्स का क्रेडिट तभी ले पाऊंगा जब अमेजन उधर से उसे कंफर्म करेगा। अमेजन बोलेगा कि हाँ जतिन वर्मा को हमने बेचा। अब अगर अमेजन कंफर्म नहीं करता, मान लो कि मैंने एप्पल का एक लैपटॉप लिया अभी कुछ दिन पहले, अमेजन ने उसे कंफर्म नहीं किया और उस पर था टैक्स 36,000 रुपीज़। अमेजन ने उसे कंफर्म नहीं किया और उधर से हमें वो एंट्री नहीं दिख रही थी कि क्या हमने वो टैक्स, हम ये चाह रहे थे कि हम 36,000 दोबारा ना पे करें। क्यों? माई अकाउंटेंट वॉज स्ट्रगलिंग कि अमेजन ने एप्पल ने उधर से बिल नहीं पे किया। एप्पल का लैपटॉप था, एप्पल ने फ्यूचर स्टोर जो भी है उन्होंने बिल अपलोड नहीं किया। हमें उन्हें कॉल करना पड़ा कि आप वहाँ से बिल अपलोड कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, वहाँ से जो जिससे मैंने परचेज करा है वो बिल अपलोड नहीं करेगा। अगर मान लो वो बिल अपलोड ही नहीं करता, फिर हम एक टैक्स डिस्प्यूट रेज करेंगे, जो कि एप्पल कभी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि फिर उस एप्पल स्टोर की पूरी किताब खोलेगी कौन? गवर्नमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट उनकी पूरी बुक खोल के देखेगा कि तुमने फर्जी बिल तो इशू नहीं करे। अगर तुमने जेन्युइनली एक लैपटॉप बनाया और बेचा, उसका रिकॉर्ड है, तो तुम्हें बिल देने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब फेक सेल कर रहे हो, फर्जी बिल इशू कर रहे हो। इसलिए पहले तो हम खुद कॉल करेंगे उस नंबर पे जो उसके बिल पे दे रखा है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे, जबकि हमने आपको टैक्स पे किया है, आप जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स पे कीजिए, तभी जाके हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। ठीक है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? विल टॉक अबाउट दैट, इसीलिए मैंने क्लास के बिगिनिंग में ही कह दिया कि अभी बेसिक्स पढ़ेंगे इसके। हाजिरी लगाओ एक बार, सारे लोग हाजिरी लगाओ। बीच में सो जाते हो तुम लोग, चाय वाय पी लो, फटाफट बोलो, एक्टिविटी नहीं है क्लास में। ठीक है, yes Vivek, your answer to your question is yes. ऑल राइट, तो समझ में आ रहा है अब ये सबको? ये है सिंपल। अब एक और टर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम पहले लिख रहे थे कैस्केडिंग इफेक्ट, उसके आगे लिखो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, this happens because of non-availability of input tax credit. This happens because of non-availability of input tax credit. अब अगली टर्म लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट। Next term ITC, input tax credit. ITC is a system, ITC is a system under which taxes, under which the tax, ITC is a system under which the tax paid at stage 1, ITC is a system under which the tax paid at stage 1 and stage 2, at stage 1, stage 2, stage 3, likewise जितनी भी स्टेजेस हों, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस होंगी, किसी में 4 होंगी, किसी में 10 होंगी, एंड ऑल दी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इज
ITC is a system in which the tax paid at stage 1, 2, 3 and likewise is given the credit first write down, Ankita. The term is input tax credit. This is the new term. Input tax credit is a system in which tax paid at stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and likewise is given the credit ब्रैकेट में रिकॉग्निशन और अकाउंटेड फॉर. ठीक है, इज अकाउंटेड फॉर और गिवन क्रेडिट और रिकॉग्नाइज्ड, तीनों सेम है. ठीक है, हैश 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 करके लिख लो, स्लैश 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 करके. इज गिवन द क्रेडिट, is recognized or is accounted for while calculating the final GST to be paid. While calculating the final GST to be paid at the last stage. While calculating the final GST to be paid at the last stage, that is during the sale. That is during the sale. Is recognized, is accounted for while calculating the tax liability at the last stage, that is sale. It helps in avoiding cascading effect. It helps in avoiding cascading effect. Done for everyone? It helps in avoiding cascading effect. It helps in avoiding cascading effect. ठीक है, अगली लाइन 2-3 लाइन लिख लो, आपकी क्लैरिटी के लिए रहेगा. ITC under GST, in order to obtain ITC under GST, in order to obtain input tax credit under GST, comma, next लाइन में लिखना है in order to obtain input tax credit under GST, in order to obtain input tax credit under GST, in order to obtain input tax credit under GST, procurement, PROCUREMENT, obtaining of bills is required. ठीक है, PROCUREMENT, procurement of bills. From stage 1
in order to obtain input tax credit under GST, procurement or obtaining of bills from stage 1 till stage X till stage N लिख लो, infinity, ठीक है, till stage N is a must. Till stage N is a must, so as to enable tax invoices, ठीक है, बिल्स की जगह टैक्स इनवॉइसेस लिख लो. प्रोक्योरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइसेस ब्रैकेट में बिल्स, जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है. प्रोक्योरमेंट ऑफ जीएसटी इनवॉइसेस ब्रैकेट में बिल्स इज अ मस्ट, so as to enable the government to establish a trail of TRAIL of transactions. So as to enable the government to establish a trail of transactions. This full stop. This would help the government in curbing the phenomena of underreporting of sales. This would help the government in curbing the phenomena of underreporting of sales. ठीक है, पढ़ के देखो, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखवाया है मैंने. कोई 10 बार 10 महीने के बाद भूल भी जाओगे, इसको पढ़ोगे तो सारा कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. टेक दी स्क्रीनशॉट गाइस. अपना बना लेना अपनी सुनहरी सी लैंग्वेज में, हैंड राइटिंग में, बट अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. अब इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, डज इट हेल्प इन इंप्रूवमेंट, डज इट हेल्प इन इंक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स? यस, ठीक है. So this was all for today. See you at 8:30 for Indian Polity class. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे, ठीक है. जिन लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लिया है, टाइप कर लिया है, प्लीज़ शेयर इट ऑन द टेलीग्राम फॉर अदर्स, एंड दीज अदर्स प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, अदरवाइज knowledge which is not presented in the answer copy has got no value in life. ठीक है. On that note, I would like to end today's session. Thank you guys. Thank you everyone.